All right. So students, pre 2023 का रिजल्ट आया, right? And when I say कि 2023 results are out, there will be two categories today. One category would be of those students who cleared this exam. Second category would be who could not make it. Total 14 के students के around pass हुए हैं, है ना? Now I know the feeling about it. ठीक है कि students, those who did not make it to the finalist, they must be thinking कि अरे यार, you know what should we do? And सबसे पहले तो they must be looking at their parents' face. And थोड़ा सा disappointing लग रहा होगा. And that is quite natural and quite obvious. ठीक है, हर एग्जाम में होता है. 10th का बोर्ड दिया था, when you gave 10th board, same thing, you were looking at your parents' face. When you were giving 12th board, same thing. When you were giving your college entrances, same thing. We always look up to our parents' face because we are 99% of what we are doing is for our parents only. तुम accept करो ना करो, आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, whatever you do in life, it's for your parents. You find that smile on their face, that is your validation कि you have done something. ठीक है, without looking at that smile, you don't feel कि you have achieved something. आप जो भी करते हो उस validation के लिए करते हो, ठीक है, and that is quite obvious. उसमें कुछ बुरा नहीं है. जिनका नहीं हुआ, they must be thinking, those who could not clear, they must be thinking कि we let them down and we are total failure. And I've received so many messages today कि half of them I've not even replied because मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतने सारे मेल्स हैं. ठीक है, पूरा इनबॉक्स फिलअप हो गया है, तो I have to invest the entire night to talk to them. The point is, you are not a failure, because failure, success, an exam cannot determine that. I always look up to Ratan Tata. I don't know why. Not that he is successful, no. I look up to him for his younger years. अभी जो रतन टाटा है, मैं उस रतन टाटा को तो देखती ही नहीं हूँ. I don't look up to the present Ratan Tata. I look up to the past one, जो younger years वाला था, who left abroad की इतनी बढ़िया सी जॉब थी, सब छोड़ छाड़ के, who came to India just to spend time with his grandmother. ठीक है, when I look up at him, he is not an IAS officer, he is not an IPS, he is not IFS भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें से. ठीक है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक नहीं किया उन्होंने. एंड येट ही इज गेटिंग द रिस्पेक्ट विच इज इक्विवेलेंट टू अ गॉड. ठीक है, समझ आ रही है बात? देन आई लुक अप टू सुधा मूर्ति मैम. पता नहीं क्यों आई रेजोनेट विद हर एंड विद हर आइडियाज एंड थॉट्स. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक इंसान की फैन हूँ, मैं उनके थॉट्स की फैन हो जाती हूँ. व्हेन आई लुक एट हर, शी इज नॉट एन IAS ऑफिसर एंड शी इज सो रिच, बट स्टिल व्हेन यू लुक एट हर पर्सनालिटी, द वे शी कीप्स हर हेयर, वो सब देखते हो ना, पता चल जाता है, सादगी दिखती है इंसान की कि जैसे थॉट्स है वैसे इंसान है या नहीं. So she's not an IAS, she's not an IPS, she's not an IFS, and still she end up doing good for herself, right? And with that, in that process, she also ended up gaining respect. इतना भी है ना? Respect भी मिला है उनको काफी. Then I look at my own father. ठीक है, CA थे, ठीक है, IAS नहीं थे. He wanted to be an IAS, but family circumstances नहीं दे पाए. IPS, IFS कुछ नहीं थे, but still after he died, मतलब जब वो जिंदा थे, मैं नहीं जानती थी इतने लोगों को. जब वो चले गए, there were 350 to 400 people who flocked to our house. मतलब पूरी सोसाइटी भर गई थी, इतने लोग आए थे, because he helped them in some way. This is what I live for. I don't know why. I don't live to become an IAS or IPS. If I become an IAS, well and good. अगर मैं प्रिपेयर करती हूँ, हार्डवर्क से निकल जाता है, बहुत अच्छी बात है. अगर मैं एजुकेटर के लाइन में बहुत अच्छा कुछ एजुकेशन की लाइन में करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है. बट अगर मैं ये कर लेती हूँ कि मेरे जाने के बाद 350 से 400 लोग पूरी सोसाइटी में आ जाएं और बताएं कि इस इंसान ने हमारी लाइफ कैसे चेंज की, दैट इज वॉट एवरीवन शुड लिव फॉर. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, इफ यू हैवंट क्लियर्ड दिस एग्जाम, दैट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. ठीक है, नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. व्हाट आर दोस टू ऑप्शंस? 2024 is our year and no one can stop us. 14,000 बच्चे तो आज भी क्लियर हुए हैं ना, है ना? CSAT was tough, but still 14,000 people still cleared it. We cannot make any excuse for these 14,000. भले ये इंजीनियर्स थे, जो भी थे, क्लियर तो हुआ ना. इनके लिए भी सेम टफनेस थी, है ना? No, they also didn't know. UPSC did not specially select them and give them the question paper in advance, right? तो ये भी क्लियर हुआ. तो one option for us is 2024 is our year. We are not focusing on the result. ठीक है, रिजल्ट पे तो फोकस करना ही नहीं है. Everyone says that. Even Buddha used to say it. Even if you don't believe in Krishna, बुद्धा तो थे, उनको उनकी फिलोसफी पढ़ोगे, he always used to say focusing on result is the path towards our suffering. रिजल्ट पे फोकस करने बैठ जाओ आज,
कोई रोक ही नहीं सकता तुमको डिप्रेशन में जाने से, कोई नहीं रोक सकता. If you want someone to just fall into depression, ask him or her to focus on the result. Okay. So first point is we are not going to focus on the result, but 11 months we have. 11 महीने ही है हमारे पास. Ashok was in my previous batch of modern history, right Ashok? November में the batch started और December में started, and look how quickly the months flew by. मतलब ऐसे निकल गए, prelims भी हो गया, सब हो गया. तो 11 months will just flow इतनी easily, इतने smoothly निकल जाएंगे कि आपको लगेगा अरे कुछ किया ही नहीं अभी तक. 11 months कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम है आपके पास. You have very little time, very less time. ठीक है. So we want to make sure 11 months में even if we are studying 4 hours a day, ठीक है, even if we are indulging into 4 hours of rigorous study, ये 11 महीने 4 घंटे हर दिन हम ऐसा देंगे कि इस 4 घंटे हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, डेथ, लाइफ, मदर, फादर, ये सब कुछ नहीं सोचना. आर हेल्थ, ये वो कुछ नहीं. हेल्थ के बारे में सोच लेंगे क्या बीमारी हो रही है 4 घंटे बाद. वो 4 घंटे तो बैठना है तो बैठना है. ठीक है. When Buddha he decided कि I want to know about enlightenment, salvation, what is it? He slogged hard for it. He did not worry about any other thing. ठीक है. तो जब वो साधना में बैठते थे, when he used to sit into meditation, then nobody, no thought could disturb him. है ना. तो फर्स्ट कैटेगरी इज 2024 is our year, first and last attempt, but इसमें हम डेडिकेशन के साथ देंगे. ठीक है. डिसिप्लिन के साथ. आज आपको करना क्या है, इफ यू हैड गिवन द 23 प्रीलिम्स, व्हाट यू नीड टू डू इज टेक अ नोटबुक. ठीक है. मेरे पास भी एक नोटबुक है. ठीक है. टेक अ नोटबुक, उसमें ना लिखो, जस्ट राइट कि सो फार व्हाट डिड आई डू, हाउ डिड आई स्टडी, मैं पढ़ा कैसे था. ये आप अपने साथ अपने आप को अच्छे से जानते हो, मैं आपको नहीं जानती. आई डोंट नो. यू नो योर सेल्फ बेटर देन योर ओन मदर. आप अपनी मम्मी से ज्यादा अच्छे से खुद को जानते हो. यू नो हाउ मच यू आर स्टडीड, है ना. जानते हो ना. आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते. यू कांट लाई टू योर ओन सेल्फ. तो आप अपने बारे में चाहे 100 पॉइंट्स बने, 90 बने, वो पॉइंट्स लिखो. हाउ डिड आई स्टडी, what points did I miss in my preparation, which books did I not look at, I was supposed to complete this book but I postponed it by going into this material, that material. ठीक है. अगर ऐसा किया है, राइट इट डाउन, बी ऑनेस्ट. आज अपने आप से झूठ मत बोलना. ठीक है. आज की रात सच बोलना है खुद से. write down everything in that piece of paper, stick that piece of paper in your almirah, और कहीं पर भी जहां सिर्फ आपकी नजर जाए और किसी की नजर ना जाए. किसी को पढ़ाना नहीं है, किसी को शो नहीं करना. हम ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. You don't have to show anyone that you are indulging in these practices. You are journaling, writing. No, do it for your own self. मुझे भी नहीं दिखाना. ठीक है. I am not interested because you are the, you can say, decider of your own fate. ठीक है. आप खुद डिसाइड करते हो. I can just push you, nudge you, help you with the resources or guide you. Everything else वो सब तुमको करना है ना. तो do this practice today. जो गलती की है अब 24 में उसको रिपीट नहीं करना. We don't want to repeat those mistakes in 24. नई मिस्टेक्स करेंगे, नई गलतियां करेंगे, बट पास्ट की रिपीट नहीं करेंगे. फिर वो तो बेवकूफी हो गई ना, है ना. if there is someone who you were with, ठीक है, अब उस बंदे ने आपसे झूठ बोला, चीट किया, सब किया, 2 महीने बाद, 2 साल बाद वो इंसान वापस आ गया. पास्ट की गलती थोड़ी करोगे उस पर फिर से विश्वास करके, है ना. नई मिस्टेक्स करो, नए इंसान के साथ नई गलतियां करो, बट पुराने इंसान को फिर से चांस नहीं देना. सेम थिंग अप्लाइज टू योर ओन लाइफ एंड दिस प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ. लाइफ में हर चीज के साथ ये अप्लाई करता है. सेकेंडली, दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड 2023 का प्रीलिम्स, वेरी गुड, बट डू नॉट सेलिब्रेट. अभी प्रोसेस खत्म हुआ ही नहीं है. आपको बस एक दरवाजा था, उसकी चाबी मिल गई. There was a door, you got the key, you entered. Now there is a bigger door to open. That is mains. अब और बड़ा दरवाजा आ गया है. जो प्रीलिम्स में तैयारी की है उसका 1000 गुना यहाँ करना होगा. ऑप्शनल आपको या तो ले डूब सकता है या आपको बना सकता है. ऑप्शनल इज द रैंक मेकर हियर. So focus on your optional. At least if you're studying 8 hours a day, 4 hours should be given to just your optional. Okay, optional is that important. This strategy applies to 24 aspirants also जो 2024 में एग्जाम दे रहे हैं. You have to start from mains only. अगर प्री नहीं भी दिखला है and you are willing to give 2024, then start with your mains and we are going to discuss how to do that. Okay, if you have no habit of reading the newspaper, trust me, you are committing the biggest mistake of your life. Start reading the newspaper. Don't be dependent on spoon feeding कि भाई अर्पिता मैम ने वीडियो बना दी, हो गया अपना, तो वही पढ़ेंगे. The purpose
why I make or create videos on Hindu newspaper and then I create a gap between those lectures is for you to develop this habit of reading the newspaper yourself, कि आज लेक्चर नहीं आया तो खुद पढ़ना है, ये नहीं कि दूसरा चैनल सर्च करके उसका एनालिसिस देखना है, ये नहीं करना। मैंने गलती की है, ये आप मत कीजिएगा। हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस, whichever you are reading, both are good. Editorials don't skip. From the editorials, direct questions this year also in CSAT were asked, if you have analyzed it. And direct questions are asked in mains. Mains में लिखना होता है, यहाँ पर तुक्केबाजी टिक मार्क नहीं चलेगा। यहाँ प्रॉपर आपको वर्ड्स आने चाहिए, वो वर्ड्स एडिटोरियल से आएंगे। यू शुड नो द फैक्ट्स, यू विल गेट दोज फैक्ट्स नॉट फ्रॉम द कंपाइलेशंस बट द एडिटोरियल्स, ट्रस्ट मी। इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन द कंपाइलेशंस, मेंस में थोड़ी दिक्कत, थोड़ी क्या बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। एंड इफ यू हैव ऑप्शनल लाइक पब एड, पॉल साइंस, तो न्यूज़पेपर यू कैन नॉट स्किप इट, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कंपाइलेशंस, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब आप बोलोगे बहुत मेहनत है, तो फिर कैसे यूपीएससी क्रैक कर सकोगे? ये यूपीएससी एग्जाम मेहनत ही तो मांगता है। कोई भी एग्जाम, कोई भी पोजीशन मेहनत ही तो मांगती है। और जहां पर आपको लग रहा है कि साइड से निकल लेते हैं, फिर तो वो एक डिग्री पेपर पे लिखी हुई हो गई, लगा लो वॉल पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ट्रस्ट में। जहां पर इजी सक्सेस मिल रही है ना, वो इजी सक्सेस 2 महीने, 1 महीने, 1 साल तक टिकेगी, उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ मेहनत ही करवाएगी नेचर आपसे, ये पॉइंट याद रखना। और अगर अभी मेहनत कर ली तो फिर आगे सक्सेस इजी हो जाएगी अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचर एंड द कॉस्मोस विल फेवर यू if you slog today. I slogged day and night on Unacademy, on other platforms. I used to teach 11 hours a day. तब मैंने मेहनत कर ली, तो आज मेरा टाइम ऑफ टीचिंग रिड्यूस्ड, बट द स्टूडेंट्स वो बढ़ते चले गए, समझ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली गई। टाइम इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है बट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, बिकॉज तब मैंने 11-12 घंटे लगातार गला खराब करके पढ़ाया है ना, खुद भी पढ़ा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ, शुरुआती मेहनत आपको आगे लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगी, ये पॉइंट याद रखना। इफ नॉट यूपीएससी, देयर आर एम्पल फील्ड्स वेयर यू कैन फाइंड सक्सेस। यूपीएससी इज नॉट द एंड, ये पॉइंट याद रखना। दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ, डेथ और लाइफ के ये जो जर्नी है ना जीवन का, ये डेथ और जन्म के बीच, यही 2 एक्सट्रीम्स नहीं है, इसके बीच जो होता है ना वो है ये जर्नी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज बर्थ, देन दिस इज डेथ, ठीक है। ये जो बीच का है ना, ये लाइफ होती है, दिस इज लाइफ। और यूपीएससी को हम समझ लेते हैं या तो जन्म या मरण, यही एक्सट्रीम समझ लेते हैं, ये नहीं होता, बीच का है यूपीएससी, और वन ऑफ द मीन्स है। जितना जल्दी आपको पता चल जाए कि ग्लैमराइज कर दिया यूपीएससी कोचिंग्स वालों ने स्पेशली, ताकि ज्यादा बच्चे भर सके, ऐसे सपने बेचते हैं मार्केट में लोग, और आपके पेरेंट्स को फंसा लेते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स डालकर, और कोचिंग्स में एंट्री हो रही है, गाने बज रहे हैं, ये सब, ये जो पुलाव बना रहे हैं ना कोचिंग्स वाले, ये सपने आपको पेरेंट्स को बेचे जाते हैं, फिर वो आपके ऊपर थोपे जाते हैं, फिर आपको गिल्ट ट्रिप दिया जाता है, ठीक है। तो गिल्ट ट्रिप में ये आप समझो कि साइकोलॉजिकली समझो हो क्या रहा है आप लोगों के साथ, ये मैट्रिक्स है, इसमें फंसा के रखना है ना लोगों को, वरना मैट्रिक्स से निकल लोगे तो फिर पावर चली जाएगी उन लोगों के हाथों से जो पैसा बना रहे हैं आपके दम पर, है ना। तो इसीलिए बच्चे पूछते हैं सेल्फ स्टडी से हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, किया है लोगों ने, सेल्फ स्टडी से बिल्कुल होगा। गरिमा लोहिया मैम के बारे में सुना है, ऑल इंडिया रैंक 2 2022, हैव यू हर्ड अबाउट हर? 8 years back her father left her, right, he died, and 3 बच्चे थे, ठीक है, she was the middle child, and yet second attempt, first attempt में she could not even clear prelims, second में she became all India rank 2 with self study। तो आजकल इंटरनेट पे रिसोर्सेज सारे हैं, जितनी हेल्प चाहिए वो मिल जाएगी, बाकी सेल्फ स्टडी ही इज द वे थ्रू विच यूपीएससी कैन बी क्रैक। सोचो आज से 25 साल पहले कोई ऑनलाइन टीचिंग नहीं था, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, बच्चे सेल्फ स्टडी से पढ़ते थे। माय फादर कंप्लीटेड हिज सीए इन 1 attempt, एक ही बारी में सारे स्टेप्स क्लियर किए विदाउट कोचिंग, विद 9 to 5 भी नहीं, 9 to 10 PM की इंटर्नशिप, बिकॉज पैसे भी नहीं होते थे खाना खाने के, तो काम तो करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी से क्लियर किया और बहुत अच्छे मार्क्स से रैंक के साथ क्लियर किया, तो इट इज डूएबल। Okay, now you have everything, you have me, I can guide you, I guide you, I have been guiding you since so many years, है ना। And Ashok and Soham and everyone else in the class, I guess Smriti भी होगी क्लास में, ठीक है, they know कि I guide for free, मैं ऐसे कुछ चार्ज नहीं करती। अगर आपको मुझसे बात करनी है, I'll talk to you for hours, I'll guide you, give you all necessary resources and that too for free। तो सब कुछ आप लोगों के पास है, ठीक है, बस मेहनत ही लगानी है और फालतू के डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचना है। ये समझ लेना कि कौन अभी प्रायोरिटी पे क्या है,
ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक. अच्छा, ताहा इज सेइंग इंडिया ईयर बुक कवर नहीं किया. कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2 से 4 क्वेश्चन ही आए थे वहां से, जो कि इजीली आप कर सकते थे अगर आप न्यूज़पेपर डेली पिछले 1.5 साल से पढ़ रहे हो. If from the last since the last 1.5 years religiously you were reading newspapers, making notes, revising them, वो 2 से 4 क्वेश्चन आप वहां से भी क्लियर कर सकते थे. 2 से 4 क्वेश्चन आए थे इंडिया ईयर बुक से. आई विल नॉट लाई. 4 to 8 मार्क्स. ओके, बट करंट अफेयर्स बेस्ड थे. ठीक है, न्यूज़पेपर बेस्ड थे, बट बिकॉज देवर बहुत मतलब बहुत पीछे के थे ना, तो वो होता है. आई अंडरस्टैंड. इट वाज द टफेस्ट पेपर दिस ईयर 23. आई एडमिट इट. ओके, अब आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू टू, बिकॉज इसके लिए ही मैंने ये क्लास स्टार्ट किया है. प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन सी द स्क्रीन. देख पा रहे हो सब लोग? ठीक है. नाउ दिस लेक्चर वॉज टू इंट्रोड्यूस यू विद द न्यू बैच दैट आई हैव स्टार्टेड. ओके, this is the focus batch, Indian Polity, M. Lakshmikant. Students have this doubt. I'll take all your queries. Don't worry at the end of this lecture. अभी लेते हैं 15 मिनट में. Students have this doubt कि मैम M. Lakshmikant should we study it? Yes, because this year polity was the easiest one compared to the other subjects in prelims 23. Polity से direct questions have come. एंड पॉलिटी में भी ना लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन. फर्स्ट चैप्टर से आप देखोगे 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चार्टर एक्ट था, अमेंडमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली. बट बिकॉज सिंस द लास्ट फ्यू इयर्स दे वर नॉट आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत, वी डिड नॉट फोकस ऑन इट दिस ईयर मच. मतलब जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतना फोकस नहीं किया. एंड देन हमने देखा 86 अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाले डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, है ना. वो तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब कम से कम 2-3 बार आपने एम लक्ष्मीकांत को रिवाइज किया है. बिकॉज कंप्यूटर तो नहीं है ये, इसमें डेली फीडिंग करनी पड़ेगी, डेली रिवीजन करना ही पड़ेगा, है ना. सो द बैच दैट आई हैव लॉन्च्ड 16 जून से स्टार्ट हो रहा है बैच. एवरी डे 8 PM के आसपास जूम क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस. रिकॉर्डेड विल ऑल्सो बी गिवन एंड पेज बाय पेज, चैप्टर बाय चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर एम लक्ष्मीकांत बुक along with current affairs. I have prepared handmade notes for all of you. So on the Telegram group of this batch, handmade notes will be covered. Students had this doubt, ma'am, will we have to study M. Lakshmikant then separately after this batch gets over? No need. But yes, you have to revise 3 to 4 times. वो तो must है. उसमें कोई कटौती नहीं है. आपको लग रहा है मैंने पढ़ा दिया और हमेशा के लिए याद रहेगा, वो गड़बड़ बात है. मैंने पढ़ा दिया तो आपका जो पढ़ने वाला एम लक्ष्मीकांत को समझने वाला जो एफर्ट है वो मैं अपने सर पे ले रही हूँ. ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर न्यू, दे फाइंड इट वेरी टेक्निकल. स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, सम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, टेक्निकल होते हैं कुछ वर्ड्स. देन इट इज वेरी टफ फॉर द न्यूबीज, even those who have given 2-3 attempts to correlate with the topics with current affairs. It is very tough to go back 2 years back and correlate a Supreme Court का ruling with M. Lakshmikant. वो मेहनत मैं आपकी तरफ से करने वाली हूँ, वो गारंटी मेरी है. बट द टेस्ट दैट आई एम गोइंग टू टेक एवरी सैटरडे संडे इन दिस बैच एंड दी टेस्ट के अलावा जो मैं ओरल क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी क्लास में, ठीक है, ऑन स्पॉट टेस्ट होगा, वो सब आपको करना होगा. ठीक है, वो आपकी मेहनत होगी. आई कैन जस्ट नेम एनी वन इन द क्लास इन बिटवीन द लेक्चर टू एक्सप्लेन टू मी अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा दिया है. ठीक है, इससे क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ी रहेगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा. आई जस्ट वांट यू टू बिकम इंटरेस्टेड इन यूपीएससी का प्रिपरेशन. विदाउट इंटरेस्ट यू विल नेवर स्टडी इट. ओके, तो आप देखोगे 16 जून से द बैच स्टार्टिंग. दिस इंडेक्स आई विल बी, दिस टाइम टेबल आई विल बी शेयरिंग ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, जो सेपरेट बैच का ग्रुप है. इस तरीके से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दे आर सेपरेट चैप्टर्स इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द बुक, बट आई विल कोरिलेट देम. ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए. प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वील स्टडी देम टुगेदर. LG and governor, same positions, we'll study them together. Supreme Court, High Court, same positions, we'll study them together. ठीक है, जो interrelatability वाली parts हैं वो हम साथ में पढ़ेंगे. In 19 to 20 classes, your entire M. Lakshmikant will be over. But because this is a 30 class based batch, ये 30 classes इसमें है, तो 20 classes में तो हम अच्छे से book को cover करेंगे. Rest remaining 10 classes will be mains training classes. Because students who have cleared 23 का prelims, they have also enrolled in the batch. तो मेंस की ट्रेनिंग तो जरूरी है. Simultaneously every Saturday Sunday I'll give you homework questions, but 10 classes में आपको मैं मेंस की तैयारी अलग से सेपरेट कराऊंगी हैंड होल्डिंग के साथ. ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है. इट इज द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ. स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ टू स्ट्रक्चर एन आंसर इवन आफ्टर टेकिंग कोचिंग्स के बाद भी, बिकॉज पर्सनल वन-on-one अटेंशन नहीं होता कोचिंग्स में. If it's online, still there is no one-on-one attention. My vision is to provide one-on-one attention. मतलब if I'm talking to Karthik, then Karthik के सारे queries मुझे उसी वक्त solve करने हैं.
ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सबको मैंने पढ़ा दिया अब जाओ अपने अपने घर और रिवाइज करो, ऐसा नहीं होना। कार्तिक के कोई डाउट है तो फिर पर्सनल जूम सेशन फॉर कार्तिक, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, विल टेक। ओके, चाहे आंसर गंदे से गंदा स्टार्ट कर रहे हो आप लिखना, ठीक है। अशोक हैज रिटन लेट्स से वर्स्ट आंसर इन हिस्ट्री, ठीक है, अभी तक की यूपीएससी की हिस्ट्री में सबसे गंदा आंसर, बट आई मेक श्योर कि वो सबसे गंदे से ना सबसे अच्छा हो जाए, ठीक है। उसके बाद ही बैच खत्म होगा, चाहे इस बैच में मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों ना लगानी पड़े। बैच के ओवर होने के बाद भी इफ यू हैव एनी डाउट, पर्सनल जूम का 1-on-1 सेशन आई विल बी कंडक्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? ऑल राइट, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओनली फॉर यू गाइस, ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट शक्तिमान वाला इनिशिएटिव दैट आई हैव स्टार्टेड, राइट? दिस इज माई इनिशिएटिव, ऐसा नहीं है कि ये किसी और का इनिशिएटिव है और मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा अपना इनिशिएटिव है। अभी तक इसमें ना प्राइस आ रहा था, ठीक है, कि यू हैव टू pay this particular price and then you have to enroll, but only for those students who have participated in my polity batch, सिर्फ उन students के लिए। I guess 40 के around students हैं, है ना अशोक? You are also there in the polity batch, right? Only for those students who are in the polity batch, this ये वाला batch, उनके लिए free of cost access होगा, जिसके लिए I'll give you separate coupon, ठीक है, जहां से आप free of cost access कर सकते हो, so that you can evaluate your mains के आंसर, ताकि आप अपने मेंस के आंसर, जब जैसे मान लो आप आंसर आपने कोई किसी भी टॉपिक पे लिखा, हिस्ट्री पे लिखा, ज्योग्राफी पे लिखा, यू वांट समवन टू इवैल्यूएट एंड आई एम नॉट प्रेजेंट, देन शक्तिमान विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट इट। शक्तिमान बेसिकली इज माय ब्रेन, ठीक है, तो जो इवैल्यूएट कर रहा है वो मैं ही कर रही हूँ ऑटोमेटिकली। तो फॉर दैट आई शेयर दैट कूपन कोड सेपरेटली ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ द पॉलिटी बैच। अगर आप लोग पॉलिटी बैच के टेलीग्राम ग्रुप में हो तो आपको मैं शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, कल तक टेक टीम हेल्प कर देगी शेयर करने में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, चलो शेयर करती हूँ स्क्रीन में दूसरा। बाकी मैं अभी कोई बैच प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बस 1-on-1 बात करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन अप योर वीडियो, आई एम गोइंग टू टेक योर डाउट्स, ठीक है, मैं आप लोगों के डाउट्स लेने वाली हूँ। तो प्लीज इन द चैट सेक्शन लेट मी नो किसको अपने सबसे पहले डाउट शेयर करने हैं। इन द चैट सेक्शन लेट मी नो, किसी को बैच से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड, एनी वन, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, देन आई ओपन अप द ऑडियो, फिर मैं ऑडियो ओपन अप कर दूंगी। अशोक, कार्तिक, एनीवन, एनी डाउट? भाग्यश्री, परमिंदर, ताहा, नकुल, विजय। रिकॉर्डिंग अभी हो जाएगा 30 मिनट्स में अवेलेबल विपिन। ओके भाग्यश्री, अगर आप इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटी बैच, देन दिस इज द ईमेल आईडी जिसके थ्रू आप रीच कर सकते हो, ठीक है, upscvidiz@gmail.com। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कहीं, upscvidiz, ओके। अच्छा, पॉलिटी लेक्चर कब तक अवेलेबल रहेंगे? 24 तक, 24 के लिए ही तो बनाए हैं, ठीक है विपिन, 24 तक अवेलेबल रहेंगे, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग्स विल बी गिवन टू यू टिल 24 एंड डाउट सेशन टिल 24, जब मर्जी पूछो। किसी को मेजर डाउट पूछना है तो बताओ, तो आई विल ओपन अप द ऑडियो। इन द चैट सेक्शन मुझे बता दो एक बार, क्योंकि मैं यहीं पर ही ओपन करके बैठी हूँ चैट सेक्शन को। मेजर डाउट, जस्ट टाइप मेजर डाउट and I'll open up the chat section. Doubt can be related to anything. Okay, Ayush Bhatt, can I open up your video and audio? एक second रुकना जरा। आयुष, इसमें तो आप दिख ही नहीं रहे कहीं। How to start newspaper? ऑल राइट, देखो न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इजी, कुछ ऐसा टफ नहीं होता। सोहम, आई एम कमिंग टू यू, जस्ट 1 सेकेंड। न्यूज़पेपर रीडिंग इज इजी। पहली बात तो आप न्यूज़पेपर को जब पढ़ते हो, कीप योर सिलेबस विद यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओनली यू हैव टू स्टडी। सिलेबस भी मेंस का, इट शुड बी मेंस सिलेबस। Anything related to India, China, disengagement, it falls in GS paper 2 category. So write it down in the paper itself, GS paper 2. And then study what are the regions which are in news. अभी recently Depsong region was in news. एक Dekong करके region news में था, ठीक है, तो वो regions को पढ़ना है। LAC was in news. What is LAC? वो पढ़ना है। LAC related ही आपको पढ़ना है कि इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन सी लाइन है which divides India श्रीलंका। What is the line which divides India China? What is the line which divides India Pakistan? ठीक है, so you have to classify news according to the syllabus and you have to find the keywords, identify the keywords in the article. For example, repo rate has been unchanged, so you don't have to bother about what is the rate and why it is unchanged.
Right now, you have to bother about what is repo rate exactly. If it is increased, what is the impact on Indian economy? If it is decreased, what will be the impact on Indian economy? These three things you have to understand. ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है, ठीक है? And if you really want to engage in newspaper reading, start watching by the Hindu newspaper analysis. उससे क्या होगा? एक हफ्ते उसको देखो, डिपेंडेंट मत होना उसके ऊपर. एक हफ्ते के लिए देखना है, समझना है कि कैसे एनालाइज किया गया है न्यूज़पेपर को. And then after 1 week, try to read it yourself. You will find a major change in your perspective. Okay? All right. Soham, yes, Soham, what's your doubt? Actually, ma'am, can you hear me? Yes, I can hear you. Actually, ma'am, since last years I've been taking UPSC preparation, So last 2 years I bought some mock tests from various coaching centers. But what I found is that in every mock test, whichever I was giving, the number was not going up 30, It was not going above 30 at all. Now the fact is that, is it necessary to buy mocks, or I need to focus only on static and current affairs? By only starting, I can appear the exam, or is it really necessary to focus on the mocks and give the mocks and buy the mocks? These all things. Basically, mocks are designed to train your mind, है ना? To give you the environment कि within this much second you have to complete your questions, right? So basically, speed training is provided through mocks, and secondly, speed training के साथ mind is stimulated. Stimulation is required in this preparation. Without stimulation, you will become very lethargic. So do not purchase mocks. There are free mocks on Insight website. There are free daily 5 current affairs are uploaded, static are uploaded. तो 10 से 15 तो वहीं से practice हो जाएंगे, है ना? So at this point of time, there is no need to purchase any mocks. Okay, if you're preparing for 2024, don't fall into the trap of purchasing mocks. They will, lucrate you, but don't fall into. Actually, they have done it so many times. They have called me so many times, but I also played game with them. That is not a matter. They can't play with me. Another thing, I have written so many answers in my life since last 1 year I stopped. Priorly, I wrote so many answers. When I used to attend your batch on Unacademy as well, I wrote many answers and I showed them, pertaining to polity especially, I showed them to many educators and they were high up praise of my answers, So since last year I haven't practiced at all. So this might come down at the moment, but I need to practice it again. I need to pick it up again. That's what I'm telling. Okay, doubt done. Thank you. Okay. Ma'am, 2024 is my first attempt. Which is the subject I should start with? Okay. देखो ये बहुत easy सा doubt है, ठीक है? इसमें क्या है कि सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है? पहले तो वीकली टारगेट्स बनाने स्टार्ट करने हैं, ठीक है? वंस यू स्टार्ट मेकिंग वीकली टारगेट्स, you have to decide in a day how many subjects I'll study, because right now 2024 is your first attempt, Bhagyashree, Bhagyashree, yeah. तो 2024 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उसके लिए आपको एकदम स्टार्टिंग में अपने ऊपर एकदम बोझ नहीं डालना. You don't have to overload yourself with the preparation. Starting with 4 hours, start with 4 hours preparation, जिसके अंदर you can divide 1 hour to one subject, 3 hours to another subject. One subject should be easy, light, history हो सकता है, economy हो सकता है. Second should be heavy, polity हो सकता है, geography हो सकता है. You have to pick a combination of subject. Every day that combination has to change. Every alternative day, ठीक है? For example, Monday, history polity you have studied. Now you will study history polity on probably Wednesday or Friday. इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली स्विच करते रहो, माइंड आपका फ्रेश रहेगा. If you decide for 1 week history and polity only I'll study, that way your mind will become very lethargic. Start small. Plus don't worry, I am just keeping a gap of 1 or 2 days for all the students. From probably after next 2 or 3 days, I'll be creating daily focus targets on Telegram. Telegram पे मैं daily focus targets दूंगी. जिनको फॉलो करना है वो करना, जिनको नहीं करना मत करना, बट आई विल पोस्ट टारगेट्स, ठीक है? आप अपने सिचुएशन सर्कमस्टेंस के हिसाब से यू हैव टू फुलफिल दोस टारगेट्स कि दिस एनसीईआरटी और दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी, और दिस मच you have to study, and next day I'll be giving free questions that you have to practice yourself. Those who are serious about 2024 attempt, they can follow the daily focus targets that I am going to provide. जो नहीं, जो चाहते हैं हम कोचिंग को ही फॉलो करना चाहते हैं, वो करें, कोई प्रेशर नहीं है. बट मैं अपनी तरफ से आज से नहीं 2 दिन बाद से लेकर 2024 के प्रीलिम्स तक ये फोकस टारगेट्स देती रहूंगी. I want to make sure कि by the end of December your entire syllabus is completed. अभी शायद ये गलती की होगी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा काफी बच्चों का 23 प्रीलिम से पहले, रिवीजन नहीं हुई होगी 3 से 4 बार, है ना? बट मैं वो गलती रिपीट नहीं होने देना चाहती.
तो बाय दिसंबर एंड आई मेक श्योर कि ऑप्शनल इंक्लूडिंग ऑप्शनल सिलेबस शुड बी कंप्लीट. Once syllabus is complete, then revision quickly हो जाती है. मतलब आप 2-2 हफ्ते में फटाफट रिवाइज कर सकते हो और 3 बार रिविजन फ्री से पहले खत्म कर सकते हो. रही बात पैटर्न चेंज होने की, ठीक है, हाँ रिसोर्सेज मैं बता दूंगी आनंद, ठीक है. पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, और जैसे पैटर्न चेंज हुआ है वैसे ही हमारे क्वेश्चंस जो हम आपको देंगे टेलीग्राम के, जो फ्री चैनल है टेलीग्राम का, जो क्वेश्चंस मैं बनाऊंगी पैटर्न चेंज के हिसाब से ही बनाऊंगी. बेसिकली पैटर्न चेंज हैज बी डन टू स्टिमुलेट योर माइंड, नथिंग एल्स. यू लुक एट द ऑप्शंस, यू विल सी कितना माइंड बॉगलिंग ऑप्शंस बनाए हैं इस बार. द क्वेश्चंस वर फिर भी ठीक थे, यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से थे. द ऑप्शंस वर द मेजर प्रॉब्लम इन दिस ईयर्स अटेम्प्ट. ऐसे टिपिकल ऑप्शंस बनाए गए हैं कि यू कैन नॉट जस्ट पॉइंट आउट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यू हैव टू एनालाइज एंड गेस विच स्टेटमेंट वुड हैव बीन करेक्ट. ऐसे ऑप्शंस बनाए गए हैं. माइंड स्टिमुलेशन का काम किया है यूपीएससी ने और कुछ नहीं किया. रही बात सी सैट की, डू यू नो अबाउट स्लीपी क्लासेस? How many of you know about sleepy classes? So there is Shekhar Dutt sir, wonderful teacher, YouTube पे है, ठीक है. He has decided to undertake this initiative of teaching CSAT, CAT level की CSAT हो गई है अब तो, teaching maths free of cost. I would request all of you to join Sleepy Classes का YouTube channel. I'm not saying purchase any course, मैं ये बोल ही नहीं रही हूँ. आई एम अगेंस्ट परचेजिंग ऑफ एनी कोर्सेज. सेल्फ स्टडी से आराम से हो सकता है, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अगर आप स्ट्रेटेजाइज मैनर में चीजों को सेलेक्ट करके वही चीजों पर स्टिक रहो, ठीक है. तो यूट्यूब से आई हैव फ्रेंड्स हु हैव क्लियर्ड दिस ईयर प्रीलिम्स आल्सो एंड दे आर, लास्ट ईयर भी किया था, आईपीएस भी है, आईएएस भी है मेरे पास फ्रेंड्स ऐसे जो सेल्फ स्टडी से ही क्लियर किया है. एंड दे टेल मी कि वी गो टू दीज कोचिंग्स बट वी एडवाइज स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर ऑन देयर ओन, because UPSC demands self-study. UPSC is against coachings. We could see it in the prelims 23 question paper also. UPSC नफरत करता है कोचिंग माफिया से, ठीक है. और अब ये हो रहा है, पहले इंजीनियरिंग तक ही लिमिटेड था, अब ये यूपीएससी में आ रहा है. तो यूपीएससी इज अगेंस्ट इट. दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है. जीमो इज सेइंग यस इट इज इन इंग्लिश, ठीक है. स्लीपी क्लासेस इज इन इंग्लिश ऑल्सो, दे टीच इन इंग्लिश एंड CSAT they are going to provide free lectures on CSAT. Okay, don't worry about it. From I guess the end of June they are going to provide it. Okay, so these are the initiatives that we have launched. Politica batch I have launched. Then उसके बाद शक्तिमान पे I've been working. And here also शक्तिमान पे क्या होगा कि basically आपकी मेंस आंसर इवैल्यूएशन, हिंदू न्यूज़पेपर समरी, डेली प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू पैटर्न चेंज, बिकॉज टेलीग्राम पे ना सब कुछ नहीं डाला जाता. टू टाइप एंड टू पोस्ट इट्स वेरी टफ फॉर अस, राइट. दैट इज व्हाई अ प्लेटफॉर्म हैज बीन क्रिएटेड, अ वेबसाइट हैज बीन क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट यू कैन गेट एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स, प्लस 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ मी, बिकॉज ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है. एनी गाइडेंस, एनीथिंग दैट यू नीड, यू विल गेट ऑन शक्तिमान. शक्तिमान बेसिकली इज अ टूल थ्रू विच यू कैन 2024 का प्रिपरेशन को बहुत इजी कर सकते हो विदाउट फॉलोइंग इनटू द ट्रैप्स ऑफ कोचिंग्स. अभी 2 दिन तो किसी कोचिंग के ट्रैप में मत फंसना, इसलिए मैंने ये सेशन आज का तैयार किया है आप लोगों के लिए. कोई कितना भी कहे, किसी कोचिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है. किसी भी मॉक टेस्ट, किसी भी ये फलाना ढिमकाना कोचिंग, ये बैच शुरू हो रहा है, हम तो 224 की गारंटी ले रहे हैं, इन चीजों में मत फंसना, ठीक है. दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ये आपको और कंफ्यूज कर देगा. डिसअपॉइंटमेंट अपने आप से तो मत रखना, ना ही पेरेंट्स की तरफ से सोचना कि दे आर डिसअपॉइंटेड, दे वांट द गुड फॉर यू, ठीक है. दे आर सैड बिकॉज वो धीरे हो रहा है, प्रोसेस सक्सेस का थोड़ा धीरे चल रहा है उनके नजर में, तो इसलिए वो अपसेट हैं. बट दे वांट अल्टीमेटली योर सक्सेस एंड योर हैप्पीनेस, ठीक है. एंड आप उनको अपनी मेहनत से ही खुश कर सकते हो, चाहे वो यूपीएससी की फील्ड में हो या किसी और फील्ड में हो. जैसे कि मैं टीचिंग की फील्ड में हूँ, मेरी मम्मी मुझसे इतनी खुश नहीं है, बट मुझे पता है मेहनत से ही वो 1-2 साल में खुश हो ही जाएंगी. ऐसे ही आपको अपने दिमाग में आइडिया रखना है कि 1-2 साल की बात है, ऐसे खुश कर ही देंगे हम पेरेंट्स को, अल्टीमेटली वो हमारी खुशी चाहते हैं, राइट. एनी डाउट, क्योंकि आज रिजल्ट्स हैव बीन आउट, आई जस्ट वांट टू टेक योर डाउट्स, नथिंग एल्स. अशोक इज सेइंग ही इज हैविंग अ डाउट, बट अशोक मुझे ना आपका विंडो नहीं दिख रहा, कैसे मैं आपको ऑन करूं? हाउ टू प्रिपेयर ऑप्शनल हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड which optional you are going to pick up? Let me know in the chat section. फटाफट से हाथ ऊपर करके बता दो कितने बच्चों ने डिसाइड कर लिया. अशोक ने कर लिया, कार्तिक ने कर लिया डिसाइड. अब प्रिपेयर कैसे करना है? ओके, सोहम ने भी कर लिया. ऑल राइट, अब प्रिपेयर कैसे करना है ये वाली बात है ना. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ, मैं एनोटेशन स्टार्ट कर देती हूँ. यस, जब ऑप्शनल की बात आती है ना, इट्स वेरी इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, नकुल इज सेइंग हिस्ट्री.
डीप इज सेइंग 3 times प्रीलिम्स दिया नहीं हुआ। पहले डिसाइड करो 2024 में देना है या नहीं, लास्ट अटेम्प्ट बनाना है इसको या नहीं। और अगर लास्ट अटेम्प्ट बनाना है तो फिर जो गलतियां पिछले 3 अटेम्प्ट में की है, जो कि की होंगी, नोट डाउन करके रखनी है आज रात को बैठकर, वो गलतियां कैसे रिपीट नहीं करनी नेक्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। सेकेंडली, ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करें। देखो ऑप्शनल के लिए ना अब आप मेंस की तैयारी 1 दिन का गैप लो। ठीक है, ऐसे नहीं कल से बैठ गए पढ़ने अब तो फोड़ देंगे, ये सब नहीं करना। ठीक है, 1-2 दिन का गैप लो, मेंटली रिचार्ज करो खुद को थोड़ा सा। ठीक है, बाहर जाओ, घूमो फिरो, अकेले बैठो पार्क में, जो करना है करो, बट मेंटली अपने आप को उस जोन में लेकर आओ पहले पढ़ने के, वरना मैं कितना भी पढ़ा लूं सब ऊपर से जाएगा, है ना। तो मेंटली रिचार्ज करो, बुक पढ़ो, मेरे पास एक बहुत बढ़िया बुक है, मैं लिंक शेयर करूंगी इसकी। ठीक है, तो बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा अपने दिमाग को ट्रेन करो। उसके बाद ऑप्शनल की तैयारी करनी है 2 दिन बाद से कम दिन में 4 घंटे ऑप्शनल को डेली देना है, अभी से लेकर नेक्स्ट 4 महीने तक। एम बनाना है, टारगेट बनाना है, 4 महीने में ऑप्शनल कंप्लीट करना है। एक बारी की स्टडी, दोनों पेपर्स कंप्लीट करने ही करने हैं, 2 पेपर्स होते हैं पता हो तो। ठीक है, और ऑप्शनल रैंक डिसाइडर होता है, दिस इज अ रैंक डिसाइडर पेपर। ठीक है, इससे रैंक डिटरमाइन होगी आपकी। द चॉइस ऑफ सर्विस दैट यू वांट, IAS, IFS, IRS, इट इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शनल ओनली। तो पहले तो ऐसा ऑप्शनल पिक करो जिसमें कंसिस्टेंटली इंटरेस्टेड रहो। ठीक है, ये नहीं कि आज किसी के टॉपर स्टॉप सुन लिया, इंटरेस्ट आ गया, 2 महीने बाद रोने बैठ गए कि नहीं हो रहा अपने आप से। ठीक है, ये नहीं करना। वंस यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि भैया यही ऑप्शनल है जो मुझे पसंद है, आई कैन नॉट skip this optional, I am interested in the books of these optional, ठीक है, of this particular optional, डिसाइड कर लिया, उसको लिख लो कहीं कि यही मेरा ऑप्शनल है। देन यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस विच इज प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सिलेबस के अंडर ही ऑप्शनल रहता है आपका, दिस इज नॉट अंडर द सन कुछ भी पूछ ले, इट्स नॉट प्रीलिम्स। मेंस में स्ट्रिक्टली दे आर अडहरिंग टू द सिलेबस। ऑप्शनल का सिलेबस निकालना है, सिर्फ लास्ट 3 years के PYQs यू हैव टू टेक आउट, ओनली दैट। क्योंकि पैटर्न हैज बीन चेंजिंग ना, लास्ट 3 साल से पैटर्न चेंज हो रहा है, तो लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो, उससे पीछे मत जाना, वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके अशोक, कार्तिक, आयुष, ठीक है। तो सब बच्चे 3 साल से पहले जाना ही नहीं है, अब 3 साल में पैटर्न चेंज हुआ है, लास्ट 3 years PYQs ओनली, उससे पहले के नहीं। निकालो मेंस के ऑप्शनल के 3 PYQs, एक बार जस्ट स्किम थ्रू देम, एक बार जस्ट उनको देखो। ओके विपिन, उसके बाद क्या करना है, रिसोर्सेज गैदर करने हैं। रिसोर्सेज कैसे, विच NCERTs आर रिलेटेड टू माई ऑप्शनल, वो निकालनी है। इफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज योर ऑप्शनल, पॉलिटी की NCERT 11th-12th की यू मस्ट हैव इट, बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करने होंगे ना। ऑलराइट, अगर PSIR ऑप्शनल है, अगेन पॉलिटी की 11th-12th की NCERT बेसिस शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, 6th to 12th की NCERTs यू शुड हैव। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है तो NCERTs की इतनी जरूरत नहीं है। रिसोर्सेज NCERT बना लिया, अब स्टैटिक बुक्स निकालने हैं। ठीक है, स्टैटिक बुक के लिए एक बार उस ऑप्शनल के किसी टॉपर को देखना है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो आपके पास इंडियन सोसाइटी की 11th-12th की बुक होती है NCERT, वो रखनी है अपने पास, वंडरफुल बुक आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, नाउ इफ यू हैव योर ऑप्शनल, यू हैव डिसाइडेड, अब स्टैटिक बुक्स निकालनी है। ठीक है, स्टैटिक बुक के लिए आपको करना क्या है, एक टॉपर को पिक करना है जिसने उस ऑप्शनल में रैंक जो लेकर आया है, सिर्फ एक या 2, उन दोनों को सुनो जिससे ज्यादा रेजोनेट, जिसके स्टडी के तरीके से ज्यादा रेजोनेट होते हुआ, ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उनके स्टैटिक बुक्स का नोट बनाना है। इन्होंने कौन सी स्टैटिक बुक्स पढ़ी थी वो नोट बनाना है। मैंने 99% केसेस देखे हैं, ये जो क्लियर करते हैं ना, और जो इनका ऑप्शनल होता है, इन्होंने सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया होता है। 99% केसेस मैंने देखे हैं। ठीक है, इन्होंने हेल्प बस इंटरव्यू के दौरान ली होती है कोचिंग से, या मेंस की टेस्ट सीरीज के दौरान, बेसिक कोचिंग नहीं ली होती है। सेल्फ स्टडी ही यहाँ पर आपका टूल है क्लियर करने का, क्योंकि इसी से डिसिप्लिन आता है, कोचिंग से डिपेंडेंसी आती है और उसी डिपेंडेंसी में आप लटक जाते हो। समझ रहे हो, प्रीलिम्स तक ठीक है, मेंस में डिपेंडेंट होना बहुत गलत है। मेंस में आपको आपके दिमाग को स्टिमुलेट करना है, लिखना आप ही को, आपको कोई रटा नहीं सकता, क्वेश्चन बहुत डायनामिक होते हैं, डायरेक्ट बुक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए मेंस इज थोड़ा सा हटके। ठीक है, तो रिसोर्सेज टॉपर्स के आपको निकालने हैं, स्टैटिक बुक्स 4 से 5 होती है, उससे ज्यादा होती ही नहीं है। एंड देन उन बुक्स को साइमल्टेनियसली whichever topic you are covering today, start solving the questions based on that topic from the 3 years PYQs. Now what I do is, मतलब मैं आपको PubAt का एग्जांपल दे सकती हूँ, because I have done my masters recently in PubAt. IGNOU का मटेरियल इज एक्सीलेंट, वाई, बिकॉज IGNOU के टीचर्स आर चेकिंग द UPSC मेंस के क्वेश्चन पेपर, जितना मैंने सुना है अपने दोस्तों से, ठीक है, जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है। एंड IGNOU के क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट,
90% जनता इग्नोर करती है, और जो 10% इस बात को जानती है उनके लिए इजी हो जाता है मेंस। ठीक है, इग्नू के क्वेश्चन पेपर ऑफ योर चोजन सब्जेक्ट। So for public administration, if you have PUBAT, I'm just giving an example. What you can do is, पहले तो PUBAT के लिए 11-12 की पॉलिटी की NCERT उसको स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड थिंग, इग्नू का मटेरियल फ्रॉम MP 011 टू MP 014, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मटेरियल मेरे पास बुक्स है, काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है, Amazon पे मिल जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2020 से अभी तक के 23 तक इग्नू के। ठीक है, ये आपको चूज करने हैं, मतलब सिलेक्ट करने हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, डाउनलोड कर लेना। आपके मेंस के लास्ट 3 years PYQs, even if you have history as optional, then also IGNOU is very important. Law optional है, IGNOU is very important, do not skip it. And जो topics, whichever topic you are completing, for example, today you have studied about mass law in public administration, solve question from IGNOU के question papers, mass law के ऊपर जो question आए solve करो। Then previous year question paper mains में mass law hierarchy के ऊपर जो question है उसको solve करो। And see if you are able to write, I am not even saying कि आपको बहुत wonderful answer पहले बारी में ही लिखना है, but are you able to just write, are you able to recall what you have studied or learned, वो सीखना है, वो देखना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो ऐसे, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इस तरीके से आपको ऑप्शनल को लेना है और अभी से स्टार्ट करना है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 months। ये पॉइंट आपको यहाँ पर अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऑप्शनल को हमको नेक्स्ट 4 महीने में खत्म कर देना है, कम से कम एक बार सिलेबस खत्म करना है, फिर रिवीजन करनी है। साइमल्टेनियसली इफ यू आर ऑन शक्तिमान, द प्लेटफॉर्म दैट आई हैव क्रिएटेड, आप शक्तिमान के थ्रू आंसर इवैल्यूएट साइमल्टेनियसली करा सकते हो, भले ही गंदा आंसर लिखा हो स्टार्टिंग में। शक्तिमान विल स्कोर यू एंड गिव यू द फीडबैक कि कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ओके, सोहम वाज रेजिंग हिज हैंड। यस सोहम। Actually, ma'am, I don't know if you know this or not. There is a site of IGNOU named eGyanKosh or something. From there, you can have all the PDFs of study materials, right? Yes, This was the step. eGyanKosh करके there is a site IGNOU का। ठीक है, there you can get all the materials। वैसे तो इस पे ना भी जाओ तो गूगल पे जस्ट टाइप MP011 PDF, they will give you the PDF, बहुत freely available है। If you want public administration आपके पास है optional, you want me to give you the question papers or the books, the PDF, etc., you can mail me directly. Okay. Ashok is saying I have doubts regarding the course. हाँ, yes Ashok, I am unmuting you. Yes Ashok. गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे 4 डाउट्स हैं। पहला डाउट है कि बैच की टाइमिंग क्या होगी? अच्छा, बैच की टाइमिंग 8 PM। 8 PM। ओके मैम। मैम 2 आवर्स का होगा? हाँ, 60 to 80 minutes का टाइमिंग रहेगी क्लास की, एंड इट कैन इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक दैट वी आर स्टडीइंग। और मैम पॉलिटी तो यहाँ से हो जाएगी, गवर्नेंस एंड IR के लिए कैसे करना होगा? गवर्नेंस विल बी इंक्लूडेड इन द बैच। GS पेपर 2 है ना, तो वो इंक्लूडेड है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा सेपरेट है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ना, एक तो आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पे डेली आज से। ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024। और अशोक आपने 23 दिया था? यस मैम। रिजल्ट क्या रहा? नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तो 24 अगर दे रहे हो तो आज से आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। ठीक है, बट आई विल ऑल्सो लिंक इंटरनेशनल रिलेशंस इन दिस पॉलिटी वाला बैच, बिकॉज देर आर सो मेनी केसेस जहां पर इंटरनेशनल रिलेशन की इन्वॉल्वमेंट रहती है। ठीक है, सो करंट अफेयर्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, प्लस IIR का फ्री बैच आई एम स्टार्टिंग। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो 10 रुपीज का ही होगा। ठीक है, बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो फुल UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मुझसे। ठीक है, और हाई पे वो कर नहीं सकते कुछ, अगर हाई कॉस्ट में यहाँ पर लेकर आती हूँ, तो फ्री कोर्स इंटरनेशनल रिलेशन का आफ्टर पॉलिटी विल स्टार्ट। टिल देन यू फोकस ऑन द करंट अफेयर्स। पॉलिटी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप IR के कुछ केसेस एंड सुप्रीम कोर्ट की कुछ हियरिंग्स विच आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर्स, आई एम गोइंग टू शेयर दैट इन द कोर्स इटसेल्फ, डोंट वरी। गवर्नर्स जहां पर है वहां पर IR भी इंक्लूडेड होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। बट करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना शुरू कर दो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, ताकि इक्विप्ड नॉलेज इक्विप्ड रहे। प्लस मेंस में ना IR इज सोनली करंट अफेयर बेस्ड, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता, इट इज जस्ट करंट अफेयर्स। बिकॉज IFS की पोजीशन डिटरमाइन होगी ना यहीं से, वो आपकी तभी होगी जब आपकी डायनेमिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। रटा हुआ तो कोई भी बोलकर आ जाए, है ना। तो करंट अफेयर स्टार्ट कर दो आज से ही, और एडिटोरियल्स पे ध्यान देना। इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड अफेयर्स और रिलेटेड टॉपिक इन द एडिटोरियल, डोंट स्किप देम। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो आज से। नोट्स शुड ओनली बी इन पॉइंट्स,
पैराग्राफ वाले नोट्स नहीं बनाने कभी भी। और फ्लो चार्ट, आप सबको मैं बोल रही हूँ, फ्लो चार्ट्स इस तरीके से ना आदत बनानी शुरू कर दो अपनी। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट आगे जाकर भी, ठीक है। रिवीजन में फ्लो चार्ट जितना हो सके, नहीं बन रहा फिर भी घुसेड़ो फ्लो चार्ट कहीं भी, पर बनाना, हैबिट बनाना शुरू कर दो। जितना नोट्स को शॉर्ट करते जाओगे और फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। एंड मैम जो पॉलिटी में आपने अभी कहा केसेस एंड सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स, तो लक्ष्मीकांत में बस उसका रेफरेंस होता है, एंड पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं जजमेंट्स, तो मैम वो कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? कोर्ट देखो, बैच में तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स इंक्लूडेड होगी विद ऑल दी फंडामेंटल राइट्स, लास्ट 2 साल की जितनी भी रूलिंग्स हैं, ठीक है। आई विल अटैच देम। मैं तो अपनी तरफ से पॉलिटी का बैच ले रही हूँ, तो उसमें सारी आपको करंट अफेयर्स की रूलिंग्स वगैरह अटैच्ड ही हैंडमेड नोट्स में दूंगी, ठीक है। पर जो बच्चे बैच में नहीं है वो कैसे करें, तो उसके लिए क्या करना है, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी स्किप नहीं करेगा लक्ष्मीकांत पढ़ना। लक्ष्मीकांत जब पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, एंड यू आर सीइंग कि इस ईयर में ये अमेंडमेंट आया था, थोड़ा सा गूगल सर्च कर लेना है साइमल्टेनियसली। जब आप गूगल सर्च करते हो, उस अमेंडमेंट को टाइप करते हो और साइड में लिखते हो यूपीएससी, देन यू विल गेट द न्यूज अटैच्ड टू दैट अमेंडमेंट कि उस साल में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग क्यों दी थी, किस बेसिस पे दी थी। थोड़ा सा स्किम थ्रू करोगे गूगल से, जो भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स या फर्दर इंटरप्रिटेशंस आ रही है, उनको अपने बुक में या सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन साइमल्टेनियसली करते रहना है विद एवरी चैप्टर, विद एवरी टॉपिक। कलेक्शन हो जाएगा आपके पास, फिर तो आप डेली रिवाइज करते ही हो, बस इतना करना है। और अनदर थिंग इज, go through the PYQs last 4 years, whichever topic, for example judicial review you have studied today, go through the PYQs of last 4 years, see judicial review से related कोई question है, because है 2 questions पिछले 4 साल में आए हैं, ठीक है, मेंस में भी प्री में भी। solve them those questions और write those questions down in your books, sticky notes बनाकर लिख लो, और याद रहेगा जब रिवाइज करोगे कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था। फ्रॉम PIL about 4 to 5 questions in the last 4 years have been repeated in mains and prelims both, और PIL 2-3 पेज का ही चैप्टर है, उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके की हैबिट इंकलकेट कर लो कि ये नहीं कि चैप्टर पूरा पढ़ लिया अब देखेंगे PYQ, नहीं, साइमल्टेनियसली देखते जाओ, गूगल ऑन रखो। यही शक्तिमान भी आपकी हेल्प करेगा। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 पढ़ रहे हो अशोक, और साथ में शक्तिमान बैठा हुआ है, आर्टिकल 19 से रिलेटेड जस्ट टाइप की शक्तिमान गिव मी द बेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू आर्टिकल 19, he will give you that then and there only 30 seconds के अंदर। तो अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उस आर्टिकल से रिलेटेड है वही आपको प्रोवाइड की जाएगी, वही आप लिख लो, फटाफट से नोट्स बना लो, पीडीएफ दे देंगे, वैल्यू एडेड मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा ही होगा हमारे बैच में, तो अलग से कुछ करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है। ओके अशोक। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा पर्सनल है कि जैसे कि मैंने अभी शेड्यूल बना लिया है अपने 2024 का, तो उसमें मैंने एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन सब सब्जेक्ट्स को मैंने प्री के बाद समय दिया। सो स्टार्ट ओके, या फिर मुझे प्री के अंदर ही उन सबको करना है, क्योंकि प्री में तो ये तीनों आते नहीं, तो आई थॉट कि इन तीनों को। मैम एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। अच्छा, पोस्ट इंडिपेंडेंस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो तो हम पढ़ेंगे, मैं एनसीईआरटी भी कवर करूंगी, वो आपका हो जाएगा, डोंट वरी। वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्री, आई नो इट, पर वर्ल्ड हिस्ट्री प्री के बाद भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैम वर्ल्ड हिस्ट्री एक्चुअली मैंने बीए में कर चुका हूँ, तो मुझे एक बार आइडिया है बेसिक, बट ऐसे एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी मैंने नहीं किया, तो उसका आइडिया। बट जो मेन एथिक्स, जो लोग कहते हैं कि अराउंड 250 मार्क्स का अलग से पेपर है, तो उसे अगर मैं मेंस में करूँ सो दैट्स ओके, बट ना तब टाइम नहीं मिलेगा अशोक, प्री का रिजल्ट जस्ट निकलेगा, आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपको रिवाइज, ये भी मत भूलना कि आपको पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट रिवाइज करने होंगे, और उसमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत टाइम ले लेता है। आपको आपका ऑप्शनल भी राइट मतलब लिखना सीखना होगा, ट्रेन करना होगा, वो टाइम स्पीड बनाना होगा। एथिक्स में बहुत मतलब अलग अटेंशन चाहिए, अगर आप इसको अभी कवर करके रखते हो तब आपका टाइम सेव हो जाएगा, वरना तब घबराहट बढ़ जाएगी और फिर कंट्रोल लूज होने लगता है ना। तो आई वुड से कि अगर ऑल्टरनेटिव डेज 30 मिनट्स भी निकाल लो, अगर आप कि पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर लो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, फिर आपको कुछ टेंशन वाली बात नहीं, आप कुछ भी लिखवा लो फिर आपसे, है ना कार्तिक। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप, मैं आपको 2 पेज बोलूं भरने के लिए कि एथिक्स क्या होता है मुझे समझाओ, तुम 2 पेज भी भर दोगे, एग्जाम्पल भर भर के दे दोगे मुझे, है ना। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव डेज और ओनली ऑन संडेज, सिर्फ संडेज निकाल लो कि संडेज को 1 घंटा मैं एथिक्स को दूंगा, या तो एक संडे को मैं लिखूंगा कुछ एथिक्स के ऊपर अपने वर्ड्स में, या एक संडे में कुछ कॉन्सेप्ट समझूंगा, कोई एग्जांपल देखूंगा, कोई बुक रीड करूंगा एथिक्स के ऊपर। एथिक्स को ना स्टोरी लेकर चलो, लाइफ की एक्सपीरियंस, लाइफ की स्टोरी।
बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि बुद्धिज्म इज रिलेटेड टू एथिक्स. व्हाट इज एथिक्स? योर ओन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. कुछ अलग से नहीं पढ़ना. लेक्सिकन की बुक ले ली और सिर्फ संडे को इस बुक को बैठ के पढ़ लिया. और स्पेशली फोकस अभी से अशोक करना है केस स्टडी पर, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा 24 का, केस स्टडीज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है. केस स्टडीज आपको बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं. केस स्टडीज पे तब फोकस करने बैठोगे तो ऑप्शनल पे ध्यान हट जाएगा, एसे पे ध्यान हट जाएगा. एंड ऑल ऑफ यू, ऐसे पेपर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ये इतना स्कोरिंग पेपर है कि आप इसको गवा नहीं सकते. तो इसलिए एवरी संडे मेक अ हैबिट, कोई भी टॉपिक उठा लिया लाइफ के ऊपर और उसके ऊपर 1000 से 1200 पेजेस वर्ड्स लिख डाले, 4 से 5 पेजेस लिख डाले. मान लो आज हमने उठा लिया संडे को बुद्धा की लाइफ स्टोरी लिखेंगे, इंक्लूडिंग हिज फिलोसफी, प्रिंसिपल, एवरीथिंग. बस यही लिखना है, बुद्धा के ऊपर लिखना है. तो संडे को बैठ गए, टाइम देख लिया मैंने कितने बजे शुरू किया है लिखना, 1.5 घंटे में लिखना है. अपने आप को लिमिट दे दो और कम से कम 5 पेज भर दो. ठीक है. अगर शक्तिमान का एक्सेस लिया हुआ है तो शक्तिमान पे उसको अपलोड करो आंसर शीट को और देखो क्या स्कोर आता है. बिना पढ़े ऐसे में क्या स्कोर आता है. ऐसे रोज मोटिवेशन मिलेगा, डिसिप्लिन बनेगा और हाथ खुलेगा. सबसे बड़ी बात है दिमाग और हाथ का खुलना. मैंने देखा है मास्टर्स का एग्जाम दिया था, बस 5 क्वेश्चन करने थे, प्रैक्टिस नहीं थी लिखने की, तो मैं 5 में से सिर्फ 4 करके ही आ रही थी. तो ये प्रॉब्लम है. और आपको 30 क्वेश्चन करने होंगे 3 घंटे में. तो आप जस्ट मतलब कंपेयर कर लो. ठीक है. तो अभी से हाथ को खोलने की प्रैक्टिस ऐसे करो कि संडे को कोई भी टॉपिक उठा लिया, अपनी लाइफ के ऊपर उठा लिया. मेरा नाम अशोक है, अब अशोक की लाइफ के ऊपर 5 पेज भर दो, देखो कितना लिख पा रहे हो. ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाओ. चाहते हो मैं पर्सनली एनालाइज करूं आपके आंसर, तो फिर भेजो मुझे अपने आंसर यूपीएससी विद ईज. ऐसे लिखा है, कोई ट्राई किया है? चाहते हो कि मैम एक बार आप ही पढ़ो, शक्तिमान से नहीं आपसे पढ़वाना है आज, तो मैं पढ़ दूंगी आपके आंसर, मैं स्कोर कर दूंगी, मैं देख लूंगी क्या पॉइंट सही है, क्या इंप्रूवमेंट वाले पॉइंट्स होने चाहिए. ठीक है. थैंक यू. ओके. और कोई डाउट किसी को? कार्तिक, आयुष? लेट मी नो. फॉर एथिक्स इज देयर नीड टू परचेज अ बुक? और अमृतांश, एथिक्स के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है. पीवाईक्यूज और मेरे नोट्स ही दे आर इनफ. ठीक है. पीवाईक्यूज एंड माय नोट्स आर इनफ. यस सोहम, बोलो Just सोहम. one thing, ma'am. Is it true that from economy and environment ecology, science and technology, and international relations, all these subjects carry high weightage in current affairs? Current affairs questions come in bound in these subjects. Uh-huh. There are Yes, 4 that is why. Yeah. subjects. We have economy, we have geography, polity, and over here we have history. These are 4 core subjects. इनको तो आप किसी हालत में छोड़ के ही नहीं जा सकते, whether for pre or for mains, even including current affairs on these 4 subjects. और आजकल तो you have seen environment ecology equally has become important because your Indian Forest Service वाला paper has also been merged with prelims, आपका UPSC का prelims. तो ये तो फिर ये 5 तो core subjects हो गए. आप कुछ भी छोड़ दो, इन 5 को तो छोड़ के जाओ ही मत, including current affairs. Basically, But one thing I like to ask that in science and technology and international relations, as you told that in international relations, bulk of the questions will come from current affairs portion. Now in science and technology, is it important to go through the statics, or I should only be content with the current affairs portion? Because many people say that study the current affair is static oriented only. For example, you are studying about CRISPR technology, right? CRISPR Cas9 technology पढ़ रहे हो, उसमें स्टैटिक जीन एडिटिंग, स्टैटिक कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूडेड ही है. टेक्नोलॉजी करंट अफेयर वाली है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो आपका स्टैटिक ही है. तो फोकस ऑन करंट अफेयर ओनली, योर स्टैटिक विल ऑटोमेटिकली बी प्रिपेयर्ड. Yeah. That is what I was asking. And today I'll be sending you an essay. Okay, I've written many essays. I'll be sending you an essay. You'll be checking. Okay, thank you. Goodbye, ma'am. I'm leaving. All right, okay. Anyone, any doubt? कार्तिक, any doubt? कोई रहता है doubt? Please raise your hand if you have any doubt. Anyone? अमृतांश, yes, ethics सुब्बा राव सर की बुक important है, उसे पढ़ सकते हो. बट अगर आप मेरे नोट्स, क्योंकि अभी मैं क्लास लॉन्च कर रही हूँ, फ्री लेक्चर है यूट्यूब पे, तो वो नोट्स सुब्बा राव बुक से ही मैं देखकर बना रही हूँ, है ना. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो फिर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल्स, नोट्स, एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम लेक्सिकन सुब्बा राव, है ना. इसीलिए फिर एक्स्ट्रा टाइम क्यों वेस्ट करना. बट इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन. यस आकांक्षा, रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल, डोंट वरी. रिकॉर्डिंग, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलेगा. आयुष, एनी मोर डाउट? लेट मी नो.
प्लीज सजेस्ट हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करें? डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ना है। देन हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट गौरव अग्रवाल सर, IAS ऑफिसर? उनकी इकोनॉमिक्स की अभी लेटेस्ट बुक निकली है, ठीक है। ही हैज रिलीज्ड लेटेस्ट बुक ऑन इंडियन इकोनॉमी। दैट इज माई गो टू बुक। वो तो भाई मैं सबको रिकमेंड करती हूँ। आई रिकमेंड दिस बुक टू एवरीवन। एंड PYQs, दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन इकोनॉमी लास्ट 3 years, बिकॉज पैटर्न चेंज लास्ट 3 साल में ही हुआ है। ओके, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कुछ हेल्प करें प्लीज। स्मृति, ज्योग्राफी ऑप्शनल के तो मैं ऑप्शनल रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे बनाऊंगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शनल अगर आता है, जैसे इन पॉलिट आपका पबैट का ऑप्शनल का आई विल मेक अ वीडियो, ठीक है, स्ट्रैटेजी वीडियो। लॉ ऑप्शनल आई विल मेक अ स्ट्रैटेजी वीडियो। पॉल साइंस एंड ज्योग्राफी ऑल्सो, हिस्ट्री ऑप्शनल, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। इसी हफ्ते के एंड तक आएगी वो वीडियोस। आज रिजल्ट आया ना, थोड़ा सा मैं टाइम ले रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स कैन फील कंफर्टेबल। ओके, आई होप डाउट्स आर सॉल्व्ड। ऑल राइट, तो आई गेस कि थोड़ा सा कंफर्ट मिला है आपको। स्टार्ट दिस प्रैक्टिस, ठीक है। करना क्या है, व्हाट इज द प्रैक्टिस? ओके, Zoom is asking, I've got my papers from July 1. If I would be taking the class, I won't miss them. What should I do, ma'am? Can I take the class in recording modes? Yes, you can take the class in the recording mode. Don't worry, recording तो available होगी. If I'm giving live lectures, recording will be available after 30 minutes of taking the live class with notes. Plus doubt कोई आता है बाद में 2024 तक, you can ask your doubts. कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस जिन्होंने पॉलिटी के बैच में इनरोल किया है, शक्तिमान का फ्री एक्सेस विल बी गिवन टू देम। तो आप शक्तिमान से जब मर्जी चाहे डाउट पूछो, ठीक है, वो तो बैठा ही है आपके पास। ओके, तो आई होप, यस, आस्क योर क्वेश्चन, डोंट वरी, आई एम हियर। बट मैं और बच्चों से पूछ रही हूँ, सबके डाउट क्लियर हो गए? हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। अगर प्री 23 नहीं निकला है तो हिम्मत नहीं हारनी है। लाइफ का एंड नहीं हुआ। सांस ले रहे हो ना, खुशी मनाओ कि सांस ले रहे हो आज, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनसे सांसें ही छिन गई आज, और आज एक हम लोग हैं कि हम लोग आज जिंदा हैं, देख पा रहे हैं चीजों को। इस एस्पेक्ट से लाइफ को देखना है। सर पे छत है, इंटरनेट कनेक्शन है, मुझे सुन पा रहे हो, तो बहुत प्रिविलेज्ड हो। ओके मैम, व्हेन विल हिंदू एडिटोरियल्स कम? आकांक्षा 2 दिन बाद से आने शुरू होंगे। अभी रिजल्ट निकला है ना, तो आई एम नॉट बॉम्बार्डिंग विद लेक्चर्स लाइक अदर यूट्यूब चैनल्स। थोड़ा आप भी चिल हो जाओ और मैं भी थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज आप लोगों के लिए बना लूं। फिर 2 दिन के बाद से लगते हैं, फिर तो लगातार पढ़ाई करनी है 24 तक, फिर तो रुकना नहीं है बीच में बिल्कुल भी। मैम, माई पेमेंट्स टू शक्तिमान हैव फेल्ड। अमृतांश, इस ईमेल आईडी पे मेरी टीम को कांटेक्ट करो जरा, ठीक है। मेरी प्रॉपर टीम है वहां पर, तो इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करो उनको, contact@shaktiman.ai, और अपना स्क्रीनशॉट के साथ इशू समझाना, ठीक है, कि ये इशू आ रहा है, और उनको बता देना कि आई एम अर्पिता मैम्स स्टूडेंट, ठीक है, ताकि उनको पता चल जाए कि अर्पिता मैम ने डायरेक्टली इनको भेजा है। तो उनको एक बार शेयर करो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, सो दैट दे कैन रिजोल्व इट, ठीक है। All right, so on this note, we are wrapping up the session. Wonderful session. Vijay Singh Parihar, I remember you from Instagram. आयुष बट रेलेवेंट न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? अच्छा, तो पढ़ना शुरू करो पहले, स्टार्टिंग में ही नोट्स नहीं बनाने। ओके आयुष, पढ़ना शुरू करो, देखो समझ आता है या नहीं, ठीक है। कोई भी डाउट आता है न्यूज़पेपर रीडिंग में, यूपीएससी विद ईज, ये मेरी ईमेल आईडी है, आपको तो पता ही होगी। मुझसे पूछो कि मैम मैंने आज ये आर्टिकल पढ़ा, मुझे इसमें ये डाउट आया, मैं इसमें से नोट्स कैसे बनाऊं? आई विल गाइड यू, डोंट वरी। बट स्टार्ट करो पढ़ना, सिलेबस साइड में रखो, सिलेबस से मैच करो आर्टिकल को, ये सिलेबस में आता है या नहीं, और उसको पढ़ने की कोशिश करो। नोट्स नहीं बनाने पहली बार में, ओके। Zoom is saying कि 20 जुलाई से मैं अपना शुरू करूंगा। From 20 July, and materials, how will I get them? Because I've never taken the course, ma'am. देखो 16th जून से बैच अवेलेबल है, बट हर लाइव लेक्चर के बाद, आफ्टर एवरी लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग विल बी गिवन, ठीक है। तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, एंड जुलाई तक बैच चलेगा, टिल 15 जुलाई द बैच विल बी रिज्यूम्ड, and material I will be uploading in PDF format on the Telegram group of the batch only. Once you enroll in the batch, you have to enroll through this email ID, upscwithese@gmail.com. Once you enroll in the batch, you will be given the payment link. Pay करने के बाद you will be redirected to the Telegram group. वहाँ पर all the PDFs, recordings, every material will be available. Okay, don't worry about it. Okay, Vijay, that's good to know.
Ma'am, I want one-to-one session. I have many questions regarding CSE. Akansha, then reach out to me on this email ID. We'll schedule a one-to-one session for you, Zoom session. ठीक है? जिसको one-to-one session चाहिए, इस email ID पे आओ. अपना टाइम बताना किस टाइम पर आप अवेलेबल हो, ताकि हम उसी टाइम पे schedule करें आपके साथ session. ठीक है? This email ID. Yes, Jimu, what's your doubt? Tell me. No worries. Thank you, Zoom. That's a blessing if I am able to decode it nicely. Public speaking. Karthik, I remember I gave you the method through mail. Basically, public speaking is done. First, start talking to your own self in front of the mirror. Okay? That way, थोड़ी हिजक खुलेगी. Ask yourself questions. Right? That way, hesitation hategi. When hesitation is removed, then start talking to your neighbors, the kids around your, around your neighbor, the old people around your neighbor. मतलब this is the way I, gained confidence in public speaking. I used to talk a lot. ठीक है, कितनी भी शर्म आ रही हो, सब्जी वाला भैया भी खड़ा है, उससे बात करो जाके. ठीक है, मुझे कैलकुलेशन करनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, but still I used to go to the सब्जी वाला भैयास and used to indulge in idle talks, and then calculation करने के लिए मैं बोलती थी ये कैसे करते हो, ये कैसे तोलते हो. इस तरीके से ना हिजक खुलेगी. अब डरते ही रहोगे, सोचते ही रहोगे तो लाइफ निकल जाएगी. ठीक है, तो किसी दिन तो उठकर लाइफ को जीना है ना. तो फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. आई स्टिल डू दिस प्रैक्टिस. आई टॉक टू माई सेल्फ एवरी मॉर्निंग व्हेन आई ब्रश माई टीथ. आई टॉक टू माई सेल्फ, कैसा गया दिन, क्या करना है आज. किसी भी लैंग्वेज में बोलो. ठीक है, हंसो थोड़ा सा खुद को देखकर. उसके बाद आई टॉक टू माई पपी. ठीक है, वो कुछ जवाब नहीं देता, मैं उससे बात करती हूँ. Then start talking to sabji wala bhaiyas or the shop owners around your neighborhood. Talk to your neighbors. Namaste zabardasti kar liya karo logo ko. ठीक है? Jimo is saying, can you please unmute me? Yes, Jimo, tell me. I also request you to open up your video. Video. Yes. Hi. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you are audible and visible. For me, I don't understand much of the Hindi. So Okay. can you do the dispatch highly in English? Because Audio not clear. Yes. hello, audible, ma'am. Now you're audible. I don't understand Hindi that much. So where are you from? I'm from Nagaland. Okay. That's good. A student from Nagaland in our batch. Yes. Yes, Jimo. And since I have been attending these political classes from Sir, I forgot his name, but he was taking the course in English, so I couldn't able to understand the concept very well. Okay, so he was taking the classes in Hindi. English. So did you understand the concepts then? I understand some concept, but I left out some concept because Okay. speaking pace is very fast. I couldn't able to understand. I understand some basic Hindi. Okay. That's my request. Okay, so your request, have you enrolled in our polity batch? No? No, this is the first time. I have attended your history class on an academic platform. Okay, did you understand my language there? Yeah. Okay. So you, your question is कि if you join the polity batch, you don't understand Hindi, so you should you join the batch or not? Is that your question? Yeah. Okay, so the language would be English only, because I am English medium. The communication language would be in English. The notes will also be in English. Yes, at times I would translate it. The communication, the explanation would be at times in Hindi, but that would be 20 to 25% only. Okay, Yes. 80% would be in English. But if you are from Nagaland, okay, and there are other students also who don't understand Hindi. They are from south portion of India, right? So they don't understand Hindi completely. That is why 80 to 90% of my communication and explanation would be in basic English. Basic English you will understand, right? Yes, ma'am. Yeah. I can understand. And I'll be as slow as I can so that everyone can understand every concept in detail.
After explaining every concept, I'll again ask by switching on your video and audio if you've understood it or not. Until and unless you guys understand, I am not going to move ahead. Whether it takes 30 classes or 35 classes, I don't care. Okay? Will that be comfortable? Yeah, I'll be very comfortable with that. Okay. Acha, you want one-on-one personal mentorship Zoom sessions ke through Zoom sessions? Yes, ma'am. Okay. And I Just also want tell me. to if you can launch economic batch, that will be very grateful. Economy batch. Okay, don't worry. If I don't launch economy batch, then I'll give you one-on-one personal mentorship for sure for economy if you want me to. If you want that, free of cost, no Yeah, issue. Okay. You just have to communicate with me through this mail ID, upscwithease@gmail.com. Okay. because I feel like this time economy has dragged me down a little bit in prelims. And Yeah. this is my So first. right now, this is your 24 is your first attempt. No. 23. I have already attempted in Koima. Okay. So don't worry. If you have any doubt in understanding anything, just mail me at this email ID and arrange a personal one-on-one, mentorship session with you. You don't have to worry about it. Okay? At the time which is convenient to you. Don't worry about the language barrier. Don't worry about the conceptual understanding. Everything will be taken care of free of cost. Don't worry about it. Okay. This is my email ID. Want to take a screenshot? You can do that. After this session, by tomorrow, I'll be communicating with you separately, one-on-one. Don't worry. Okay? If you have any. One last question. And since optional is Babette, Okay. so to read both the Hindus and Express editorial. Okay. Which newspaper should you study with Babad? Yeah. Sir has suggested both to read the editorials. See, with Babad, the best newspaper that you can study is the Hindu newspaper. And, Okay. Yes, ma'am. The Hindu. The best newspaper that you can study. If it is not physically available in your area, you can buy it online. Yeah, you can take the subscription. Secondly, IGNOU material. I'll be sharing it on my Telegram channel, don't worry. IGNOU material is best for public administration to understand what is it. Okay, this IGNOU material. Third option is PYQs, that is previous year question papers. Public administration's PYQs of last 3 years. That is going to be really helpful. Start slowly. First, gather the materials, start reading the newspaper, start understanding the concepts. Only then switch to the previous year questions. Read and try to solve them. First, understand the concepts. IGNOU is the best resource through which you can understand public administration initially. Yes, ma'am. Okay. Any other doubt? No. Thank you so much, ma'am. Okay, welcome. Zoom last what's the process? Okay, polity ke liye, what is the process? Again, mail me at this email ID. My team will guide you. Okay, upscwithease@gmail.com. This is the email ID. My team will guide you here if you want to enroll. Okay. So I hope sare doubts clear ho gaye. Okay. So on this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class. Thank you so much. एंड चिल पिल लो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपनी गलतियां नोट डाउन करो, अपने अच्छे पॉइंट्स नोट डाउन करो और दोनों को अमेलगमेट करके आगे की प्लानिंग करनी है. ठीक है. थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग. थैंक यू सो मच.